माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 3 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री चंद्रपाल शेलानी जी 5वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। श्री शेलानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री चंद्रपाल शेलानी का निधन 81 वर्ष की आयु में 30 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री कोनिजेती रोसैया बाहरी लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के नरसारा ओपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रोसैया उद्योग और ग्रंथालय समिति के सदस्य रहे। रोसैया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री रोसैया कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। इससे पूर्व श्री रोसैया ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद तथा आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता भी रहे। श्री कोनिजेती रोसैया का निधन 88 वर्ष की आयु में 4 दिसंबर 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री राम नगीना मिश्र ने 7वीं 8वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पडरौना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राम नगीना मिश्र विशेषाधिकार और गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री मिश्र ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। श्री रामनगीना मिश्र का निधन 93 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2021 को लखनऊ में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं सदन की संवेदना है। अब सभा सदस्य के दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 301 PR नटराजन जी। Statement number 301, sir. अन्य मंत्री जी ने कहा। Number 301. Yes. A statement is laid on the table of the House. I am asking, under the Scribe scheme, the Odisha Coimbatore has granted 40 lakhs. It was in the year of 2008. What is the contribution made by the NDA government for the past 7 years, sir? Repeat it. Yes. This is my supplementary. You repeat that question, I can't hear you. See, under Scribe scheme, the Odisha Coimbatore has sanctioned 40 lakhs. It was in the year 2008. Yeah, it was in the year 2008, sir. So what is the contribution, what is the investment made by the NDA government for the past 7 years, sir? Sir, it is not clear what the member is referring to specifically on the issue of the 40 lakh investment, but I can certainly say, sir, that over the last 7 years, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under the Skill India mission has laid an extensive network of skilling and training centers, and it consists of, sir, 14,711 industrial training institutes in, delivering 143 trades. Specifically, sir, the member has asked a question about Coimbatore, and I would like to point out to him, sir, that in Coimbatore,
there are 19 ITIs and delivering 89 trades, different trades and skills in different trades. And in particular, sir, we have trained in Tamil Nadu 7,36,143 students under the PMKVY scheme, 90,359 students under the NAPS apprenticeship scheme, 34,965 under the JSS scheme, and a total of 2,68,472 students under the ITI CTS scheme. Specifically for Coimbatore, sir, I would like to point out to the honorable member that we have 19 ITIs and we have trained almost 70,000 students in various 40,000 students in various schemes in Coimbatore. Sir, to the specific point about our technological center, there are 18 technological centers being run by the MSME ministry. There has been one that is being sanctioned for Coimbatore. We are awaiting land allocation by the state government of Tamil Nadu. And if that land is allocated, 20 acres of land is allotted, we will be certainly setting up a technology center or a technology extension center in Coimbatore, sir. Question number 302, Dr. Manoj Rajoria. धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं क्वेश्चन नंबर 302 सभा पटल पर रख दिया गया है, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया। इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धन्यवाद माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष जी, मचकोल और जो अन्य स्थान बताए हैं मेरे मित्र ने, उसको भी भारत सरकार कंसीडर करेगी। अभी भारत सरकार ने 65 ऐसे धार्मिक स्थलों को कंसीडर किया है और 65 स्थानों पर ये कार्य हो रहा है और लगातार भारत सरकार ऐसे सभी अपने ऐतिहासिक और धर्म से जुड़े हुए स्थलों के प्रति संवेदनशील है और उनको लगातार जो अब तक इतनी
स्टेट ऑफ निग्लेक्ट में पड़े रहे, उनकी देखरेख कोई करने वाला नहीं था। तो उसके रहते भारत सरकार ने बहुत अधिक काम किया है और लगातार वो काम कर भी रही है ताकि सुविधाएं इन स्थानों पर बढ़ सके और धार्मिक कार्यों में लोग अधिक से अधिक भाग भी ले सकें। रामदास तड़स। जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नागपुर सर्कल में कुल 94 स्थलों की संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे अनेक ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल है जिनका भारत पुरातत्व विभाग के माध्यम से संभाल करना आवश्यक है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा केंद्रीय संस्कृति मंत्री से प्रश्न है कि जो ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे स्थलों की पहचान करने, इन स्थलों का संभाल करने हेतु केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेंगी? और दूसरा, 1942 क्रांति में मेरे सांसद क्षेत्र आष्टी और बेनोड़ा में जो संग्राम हुआ, उसमें जो शहीद हुए, उनके स्मारक के लिए सरकार, उसके जतन के लिए सरकार क्या करेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, ताटसे जी का प्रश्न जो है, मुझे लगता है कि हर सांसद के मन में अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि प्रसाद स्कीम जो टूरिज्म मंत्रालय की स्कीम है, उसके तहत पुरातत्व विभाग ऐसे सभी जगहों को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हमने अभी के फेज में 65 ऐसी जगहें जो हैं उनको चुना है जिस पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री जाते हैं और उनकी यात्रियों की सुविधाओं की आवश्यकता है। धर्म के प्रति रुचि रखने वाले सभी स्थलों पर काम किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भारत एक धर्म स्थान की नगरी है, हर जगह पर ऐसे मंदिर हैं, तो जब तक राज्य सरकार उसका प्रपोजल नहीं भेजती है, केंद्र सरकार के लिए कार्य करना कठिन होता है। और उस कठिनाई के रहते अभी इन स्थानों का प्रपोजल कोई आया नहीं है राज्य सरकार की तरफ से। जैसे कोई आएगा तो सेकेंड फेज में उसकी जरूर जो है उस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। और जहां तक एएसआई से लागू जो मॉन्यूमेंट है, एएसआई के तहत 3693 मॉन्यूमेंट जो है वो भारतवर्ष में मेंटेन किए जाते हैं और ऐसे कुछ अन्य मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर जो है उनको भी लेने का प्रयास है, जिसमें तकरीबन 11 नए मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भारत सरकार उसको मेंटेन कर रही है, अभी उसको एएसआई के तहत लेगी। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जो कि यूनेस्को साइट्स में है, उनको भी केंद्र सरकार कल्चर मंत्रालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। मलुक नागर जी। सर, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि लोधी के समय के जितने भी पुराने पुरातत्व विभाग उनका पूरा रखरखाव कर रहा है, मुगल्स के समय के रखरखाव कर रहे हैं और पूरे मथुरा की बात हुई, वाराणसी की बात हुई और देश के अच्छे सब जगहों की बात हुई, अच्छी बात है। और हस्तिनापुर जहां भगवान कृष्ण जी साथ रहे हैं और ऐतिहासिक जगह है, उसमें कांग्रेसियों ने करीब 65-70 साल में पिछड़ों की वजह से गुजर, जाट, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, दलित उपेक्षित रखा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरकार को, 750 करोड़ रुपए के करीब दिए, लेकिन और देश के हिस्सों की तरह पुरातत्व विभाग वहां के ऐतिहासिक चीजों की किस तरीके से रखरखाव करना चाहता है, कितना खर्च करना चाहता है और कब तक कर देंगे? माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ नियम अनुसार काम करना पड़ता है और उसमें जो साइट जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में उसको बरकरार रखना होता है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और जो जितनी पुरानी साइट है तो जाहिर है कि वहां पर जो भी कुछ चाहे आक्रमणकारियों की वजह से या अन्य वजहों से जो भी तकलीफ रही है पूर्व में, उसके रहते हम उसकी मेंटेनेंस उसी प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नए पत्थर का इस्तेमाल या नई चीजें हम नहीं कर सकते। बावजूद उसके
म्यूजियम बनाना, उसकी एक्सकवेशन करना और वहाँ पे जो ऐसी हस्तिनापुर जैसी जो पुरानी साइट्स हैं, ऐसी तमाम साइट्स की भी रखरखाव किया जा रहा है और उस समय के हड़प्पन साइट का भी रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें धोलावीरा अभी लेटेस्ट साइट है जिसको हमने यूनेस्को में भी इंस्क्राइब करवाया है। माननीय जगदीश पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं अत्यंत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने सभी सर्किट के बारे में स्वदेश प्रसाद स्कीम के तहत जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है उसके उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया है 3693। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है, जो हमारी सरकार ने एक बड़े राष्ट्रीय महत्व सर्किट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी है, तो जहाँ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों तक कपिल वस्तु जो सिद्धार्थगढ़ एक जन्मस्थली उनकी मानी जाती है और 29 वर्षों तक रहे हैं, उसको ASI उसको प्रोटेक्ट करती है, तो क्या उसको राष्ट्रीय महत्व के उस स्मारक में रख करके और कल्चर डिपार्टमेंट का जो एक वहाँ पे संग्रहालय है जहाँ पूरे बुद्ध सर्किट के आने वालों की मांग होती है कि जो बुद्ध का कास्केट है जो यहाँ पे रखा है, उस कास्केट 2 हैं, उसमें एक कास्केट वहाँ पे सिद्धार्थ नगर के उस गौतम बुद्ध के जन्मस्थान पे जहाँ 29 वर्षों तक सिद्धार्थ के रूप में रहे हैं, उस भारत सरकार के संग्रहालय में रखने का काम करेंगे, जिससे जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, इंडोनेशिया, चाइना के आने वाले बुद्धिस्ट सर्किट के उन बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों को वहीं पे उस बुद्ध के कास्केट का दर्शन करने को मिले, जो अपने आप में एक महत्व का विषय होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो मुझे सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक जो भगवान बुद्ध के रेलिक्स हैं उनको 5 स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सारनाथ है, बोधगया है, नालंदा है, कुशीनगर है और सांची है। और इसके अलावा 2 और जगह को इंस्पेक्ट किया गया है, जिसमें सांची, कुशीनगर, जहां पर बुद्ध रेलिक्स जो है वो अवेलेबल है और नेशनल म्यूजियम वाले उनको शायद डिस्प्ले करने की अभी डिस्प्ले के लिए ले जाया जाएगा पहले फेज के अंदर। और जहां तक उसका सवाल है कि सिक्योर जगह, सिक्योर डिस्प्ले के लिए, तो उसमें DRDO से बात की जा रही है और उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर ये काम किया जाएगा। बता दूंगी। गीता विश्वनाथ। नहीं, आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम हुआ है वो काम के बारे में बता रही हूँ मैं। गीता विश्वनाथ। 5 स्थानों पर। For giving me this opportunity. Sir, I congratulate the Minister, Honorable Minister Meenakshi Lekhi ji, and she has given a detailed reply. But I would like to ask what steps have been taken to improve the capacity of archaeology survey of India in order to boost their conservation and preservation efforts with respect to the monument of national importance. Is the government is planning to involve private players or introduce public-private partnership to conserve the preserved monuments of national importance? And I would like to know from the Honorable Minister, is there any plan to identify and improve the temples and historical monuments of southern parts of India? How is the government to conserve and preserve such great heritage sections of past generations of South in India? Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, दक्षिण भारत के भी जितने मंदिर हैं और अन्य स्थान हैं उनको ASI देखरेख करती है, लेकिन इसमें कई सारी जगहें राज्य सरकार के पास होती हैं और उनमें राज्य सरकार को देखरेख करने का आदेश होता है। और इसके अलावा जहां तक क्षमता बढ़ाने का प्रश्न है, उसके तहत मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूं कि इसमें जो टेक्निकल लोग हैं जिनको ये कार्य करने की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कमी है देश में, और एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी, जिसमें हर प्रकार की एकेडमिशियन से लेकर
जो लोग इसमें काम करेंगे आर्कियोलॉजी के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी स्किल्स के लिए कार्य किया जाएगा। कृपानाथ मल्ला, क्वेश्चन नंबर 303। उत्तर सभापटल पर रखा गया। माननीय उत्तर सभापटल पर रख दिया। सुजय विले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, कोविड के समय पे मिड डे मील प्रोग्राम में पैंडेमिक होने की वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम शुरुआत की थी। सर, इसका यूटिलाइजेशन न करते हुए देश में काफी राज्य सरकारों ने सूखा राशन सामग्री यानी कि कॉम्बो पैक का वितरण बड़े प्रमाण में किया गया है और बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार भी इसको सुनने को आया है। सर, जब डीबीटी की प्रोविजन की गई थी तो उसमें किन किन राज्यों ने ये सूखा राशन या कॉम्बो पैक वितरण किया और जिन जिन राज्यों ने इस कॉम्बो पैक का वितरण किया है उस पर आज केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सर। थैंक यू। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है पीएम पोषण, और इसके माध्यम से लगातार भारत सरकार के माध्यम से जब कोविड पैंडेमिक के समय दोनों ही स्थिति में वो डीबीटी के माध्यम से और ड्राई राशन के माध्यम से देने का प्रावधान था, और जहाँ भी जिस भी राज्य में अगर इस तरह की कोई सूचना मिली, अनियमितता की सूचना मिली, तो उस पर कार्रवाई के लिए भी सरकार कार्रवाई भी कर रही है और लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे इस तरह की अभी कोई सूचना हमें नहीं मिली कि किसी राज्य ने डीबीटी के माध्यम से या फिर ड्राई राशन कोविड पैंडेमिक के समय बच्चों को नहीं दिया। अगर इस तरह की सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे देश के 11,20,000 स्कूलों में और लगभग 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन के माध्यम से विटामिन युक्त भोजन दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे घर से थाली लेकर के, कटोरी लेके जाते हैं और दोपहर में लाइन में खड़ा होकर के उनको जब खाना दिया जाता है, उस समय पर बच्चों की मनोभावना को मैंने खुद अनुभव किया है कि वो बहुत दीनहीन महसूस करते हैं। आज के समय पर बहुत ऐसे प्रोटीन युक्त ड्राई फ्रूट आ चुके हैं, अगर ये चावल और दाल और सब्जी के जगह पर अगर प्रोटीन युक्त कोई ड्राई फ्रूट दिया जाए, मैं समझता हूं क्या इस पर सरकार कोई विचार कर रही है? देव जी, इसमें गर्म खाना देने का प्रावधान है और पीएम पोषण के माध्यम से, जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे और हम गर्म खाने और गर्म और पौष्टिक खाना के माध्यम से बच्चों को हम अच्छा भोजन दें। और इसके साथ ही साथ कई व्यवस्थाएं, जिस तरह से उन्होंने थाली की बात कही, तो राज्य सरकार, चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर से, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है कि उन्होंने बर्तन भी दिए हैं और अन्य इसके अलावे जो पीएम पोषण के माध्यम से मिलता है, इसके अलावे भी सप्लीमेंट्री भोजन के तौर पे वो कुछ देते हैं। तो राज्य सरकार चाहे तो वो व्यवस्था कर सकती है। क्वेश्चन आप तो क्वेश्चन नंबर 304 डॉक्टर सुकंद मजूमदार। Sir, a statement is laid on the table of the House. श्री विनोद कुमार सोनगर, विनोद कुमार सोनगर, श्रीमती रीति पाठक,
बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से युवाओं के कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार की तरफ से कितने पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कौशल विकास मंत्रालय के पास मेरे संसदीय क्षेत्र हेतु क्षेत्रवार सकारात्मक परिणाम की जानकारी है क्या? यदि है तो हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि 2015 में जब स्किल इंडिया को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, इसका एक मकसद था कि इंडिया को ग्लोबल स्किल हब बनाए, और हमने 2018 से एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हम देश के युवाओं को ट्रेन करें ताकि वो बाहर के देशों में उनको नौकरी मिले और उनके एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा हो। इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था 2018 में सर, और 18-19 में हमने 1 लाख लोगों को ट्रेन किया है। सर, आगे जाके मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपको, आपके थ्रू माननीय सांसद को, कि पोस्ट कोविड एक रियलिटी बन गया है कि दुनिया के देश चाहते हैं कि इंडिया से स्किल्ड मैन पावर उनके देश में आए, और ये एक स्पेक्ट्रम है सर, फ्रॉम व्हाइट कॉलर टू ब्लू कॉलर स्किल्स। तो एक तो ये बता दूं सर, सांसद जी ने पूछा है कि कितने जॉब रोल्स के ट्रेनिंग होते हैं। 4600 डिफरेंट ट्रेनिंग और स्किलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और अगर वो अपने सांसद क्षेत्र के बारे में डिटेल्स चाहते हैं वो हमसे मिले और हम उसको डिटेल्स दे सकते हैं सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 305 श्रीमती प्रतिमा मंडल। माननीय सदस्य जाइए, के जी माधव। Thank you, sir. Sir, my question is 304, sir. 304. In order to provide decent job opportunities to Indian youth in other countries, it is important that skill enhancement is focused. No. Sir. Question number 306, Shri Rakesh Singh. Rakesh Singh, 306. टेबल पे रखा गया। श्री जी गुरुमूर्ति। Thank you, Honorable Speaker, sir. The forest landscape restoration increases carbon absorption from the atmosphere. At the same time, it promotes biodiversity and rural livelihoods. Can the Minister state the details of the policy found from the promotion of forest landscape restoration in India? Communities living inside and near forested landscapes have a major role in promoting forest landscape restoration. Some of the community-led forest landscape restoration approaches practiced by forest communities in India suggest alternative approaches in forest governance. Can the Minister provide details about the steps taken to promote community-led forest landscape restoration in India? Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। जो सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं की जा रही हैं, निश्चित रूप से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू करी है। विशेष रूप से अफॉरेस्टेशन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया और सरकार के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन की स्थापना भी की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के अतिरिक्त जो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है उसको 2002 में लॉन्च किया गया था। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो एक कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री में यूज की गई है। राज्य स्तर की फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ भी काम किया जा रहा है और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से ट्राइबल मंत्रालय के साथ मिलकर के भी फॉरेस्ट मंत्रालय ने एक कार्य योजना, एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया है और निश्चित रूप से फॉरेस्ट क्षेत्र में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने का कार्य करेंगे।
Question number 307, Lao Sri Krishna. Sir, question number 307, sir. 307, माननीय मंत्री जी 307 जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है जी। Sir, gig workers have been doing great service for the last 2 to 3 years, and most importantly during the time of pandemic they have done a lot of service, sir, with regards to delivering of food, to taxi services and everything, sir. But still we are not taking care of them enough, sir. Right now they have, as per the records, they have 1.5 people that are working as gig workers, and this number is going to increase to 9 crores in the coming years, sir. But India does not have a definition of the gig economy, unlike the other sectors like MSME, sir. Is there a plan to define the gig economy clearly so that there are no loopholes in providing social benefits to the gig workers, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, भारत में सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो नया एक कोड हम लेकर के आए हैं, उसमें गिग वर्कर की परिभाषा को तय किया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है, उसमें एग्रीगेटर की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन जो 35 है, उसमें गिग वर्कर की भी परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त भी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 60 में प्लेटफॉर्म कार्य की परिभाषा और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 61 में प्लेटफॉर्म वर्कर की भी परिभाषा तय की गई है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने अभी ई श्रम कार्ड को भी लॉन्च किया है, और ई श्रम कार्ड में जो गिग वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको भी उनके इंश्योरेंस की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। Sir, the Social Security Code states that the Union government can bring in a scheme to provide for minimum wages, timely payment, pensions and insurance. However, no such scheme exists currently, sir. In the absence of a scheme, the gig workers does not have the adequate protection. When does the Union government plan to bring in a scheme with respect to the gig workers on the same line, sir? Thank you. जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, उस सोशल सिक्योरिटी कोड का जो सेक्शन 141 है, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा कोष की परिकल्पना की गई है। और इस कोड के अंतर्गत जो अन्य धाराएं बनाई गई हैं, सेक्शन 109, सेक्शन 114 में गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक के संबंध में भी ये व्यवस्था की गई है। ये कोड के लागू होने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। श्री केजी अमरप्पा, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। तेजस्वी सूर्या, क्वेश्चन नंबर 309, डॉक्टर रवि कुमार, माननीय मंत्री जी रखा गया है। माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 310, वीके श्रीकंदन, माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 311, सुनील कुमार सिंह, 311 सुनील कुमार सिंह, माननीय मंत्री जी पर रखा गया है। माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 312, श्री रक्षा निखिल खाट से, क्वेश्चन नंबर, माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 313, श्रीमती भावना पाटिल, माननीय मंत्री महोदय। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 314, पीपी चौधरी, क्वेश्चन नंबर 314, पीपी चौधरी जी, राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। बड़ा विस्तृत उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, हापुड़ जनपद में किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण केंद्र है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, न प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और न ही PMKVY एक भी केंद्र नहीं है। ITI वहां पर अवश्य है, उनके द्वारा प्रशिक्षण होता है,
परंतु इस प्रकार के केंद्र के अभाव में उनका समायोजन भी ठीक से नहीं होता और जो प्लेसिंग है वो लगभग उपेक्षित रहती है। तो प्लेसिंग का मैं आंकड़ा कई बार दिशा की मीटिंग में पूछता हूँ तो उसका समाधान कारक उत्तर नहीं आता। तो मेरे दोनों बातों को संज्ञान में लेते हुए ये केंद्र कब हो सकता है और किस प्रकार से इसकी प्लेसमेंट की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हो सकती है, कृपया माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ बताएं। सर, जैसे सांसद जी जानते हैं सर, हमारे स्किल इंडिया के नेटवर्क जो है कंसिस्ट ऑफ ITI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हम ट्रेनिंग सेंटर्स और PMKK से करवाते हैं और सब हम अप्रेंटिस प्रोग्राम भी करते हैं सर NAPS के द्वारा। सर, ये बात सही है कि ड्यूरिंग कोविड काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स या तो बंद किए गए हैं या वो जो ट्रेनिंग पार्टनर्स थे वो ट्रेनिंग के इस सेंटर की एक्टिविटी से वो निकल गए हैं। हमारे मंत्रिमंडल और एजुकेशन मिनिस्ट्री के जॉइंट एक एफर्ट है सर, हम नए 2000 स्किल हब बनाएंगे और हम सांसद के साथ बैठ के उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी हम प्लान करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 315 श्री AK P चिनराज। माननीय मंत्री महोदय, is laid on the table of the House. माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 316 डॉक्टर थोल थिरमा वलन। माननीय मंत्री महोदय जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 317 गोपाल शेट्टी जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के सदस्य श्रीमद् भागवत गीता पढ़े ताकि अच्छा काम करने के लिए इनको ज्ञान प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे आधा समाधानी हो और आधा समाधानी नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों को स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था में भागवत गीता पढ़ाई जाए। और इसलिए मंत्री महोदय से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारों से बातचीत करके देश का जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे तब पूरे देश में सभी स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सोच रही है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। जी, अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है तो अभी बहुत ही विस्तृत जवाब उनको हमने दिया और अभी भी क्लास 6, क्लास 8, क्लास 7 में भागवत गीता के कुछ पाठ्यक्रम में है और भागवत गीता की पढ़ाई होती है। अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष जी, उत्तर में ये कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों ने इसके बारे में निर्णय लेना अनिवार्य है। मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने भागवत गीता का बहुत ही वो कट्टर समर्थक थे। तो मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार इन दिनों में उद्धव जी वहां पर मुख्यमंत्री है तो वो तो इसका समर्थन ही करेंगे। जैसे उद्धव जी समर्थन करेंगे वैसे लगभग सभी राज्यों के सरकार भी इसके बारे में समर्थन देंगे। तो मैं चाहूंगा फिर एक बार सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके सभी देश के स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने की व्यवस्था करेगी क्या? अध्यक्ष जी, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है तो राज्य सरकार चाहे तो अपने कैरिकुलम में वो ऐड कर सकती है, लेकिन अभी लगातार हम ये माननीय सदस्य को भी हम ये देंगे कि अभी जो CBSE पैटर्न पे जिस हर कई क्लास में भागवत गीता की पढ़ाई होती है और राज्य सरकार चाहे तो ऐड कर सकती है भागवत गीता को। क्वेश्चन नंबर 318 गौरव गोगोई जी। सर, मंत्री को बर्खास्त करिए। सरकार किसको माननीय मंत्री महोदय उत्तर सभा पटल पे रखा गया। गजानन कीर्तिकर जी। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री महोदय गजानन कीर्तिकर जी। क्वेश्चन नंबर 320 डॉक्टर संजय जायसवाल।
माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये भोजपुरी जो है सर, अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के सारे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। शिक्षा समवर्ती सूची में है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से रीजनल लैंग्वेज को अपने को बढ़ावा देना है। तो भोजपुरी का जो इतने दिन से डिमांड चल रहा है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या भोजपुरी को क्लास 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई में और कॉलेज में शामिल करने के लिए राज्यों के ऊपर कोई दबाव बनाने की कृपा की जाएगी या भोजपुरी को उसकी जो मान्यता है वो दी जाएगी? अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा, शिक्षा समवर्ती सूची में है और साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। इसके माध्यम से भी राज्य भोजपुरी में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जहां तक सवाल है राज्यों को बताने की, तो निश्चित रूप से समय समय पर भारत सरकार एडवाइजरी जारी करती है और राज्य सरकार चाहे तो उस पर अमल करे और 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई वो कराए। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, आप अपनी सीट पर जाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महत्वपूर्ण सवाल थे। आप सीट पे विराजेंगे तो महत्वपूर्ण मुद्दे, समस्या का समाधान होगा। टी.आर. बालू जी, आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं सदन में, आपके सदस्य बेल में आते हैं। एक अच्छी परंपराएं बनाए सदन में। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, उनके सवाल उठाने के लिए, उनके अभावों को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि आप अपनी सीट पर विराजें। गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए सदन में। सदन की गरिमा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की संसद। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं यहाँ पर? ये उचित है आपका व्यवहार? सदन के नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्लीज सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें। ये हम सबका दायित्व है कि सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें। प्लीज अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको सभी समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की इजाजत दूंगा। पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। On the table of the House, papers mentioned against my name at serial number 3 in today's list of business. आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बधाई और आप शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद आपको। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मेरे नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, सभा पटल पर रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री राजीव चंद्रशेखर। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 of the list of business for today. नंबर 8, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित सूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नंबर 9 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 9 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। नंबर 10 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यावली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। नंबर 11 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आपकी अनुमति से आज की कार्यावली सूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। आइटम नंबर 12 डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name, serial number 12 in the list of the business for today. धन्यवाद। आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I want to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 289th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 2021 and 2022 pertaining to the Ministry of Culture. The status of implementation of the recommendations contained in the 299th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on actions taken by the government on recommendations contained in the 289th report of the Committee on demand for grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Item number 14, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Thank you, Chairperson sir. With your permission, on behalf of my colleague Ajay Bhatt, I want to make a statement regarding the status of the implementation of the further recommendation observations contained in the 284th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the government on the recommendations contained in the 275th report of the Committee on Demand for Grants 2020-2021 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you, sir. आइटम नंबर 15 ध्यानाकरण प्रस्ताव बाद में लिया जाएगा। आइटम नंबर 16 श्री अर्जुन मेघवाल जी। Thank you, Chairperson sir. On behalf of my senior colleague Prahlad Joshi, I move the following: that this House do agree with the 27th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 17th December 2021. सभा 17 दिसंबर 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 17 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Representation of the People Act 1950 and the Representation of the People Act 1951. डी रवि कुमार जी, श्री मनीष तिवारी जी। मिस्टर चेयरपर्सन सर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि हाउस ऑर्डर में लेके आइए। चेयरपर्सन सर, मैं दरखास्त करता हूं हाउस ऑर्डर में लेके आइए। हाउस ऑर्डर में लेके आइए प्लीज। हाउस चेयरपर्सन हाउस ऑर्डर में लेके आइए। महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। ये आपके नेता बोल रहे हैं। विधेयक है, ये सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विरुद्ध है। कृपया ये जो विधेयक है ये सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत के लोकतंत्र को होने वाला है। आपके नेता बोलना चाहते हैं? मनीष जी, अधीर जी बोलना चाहते हैं? I do oppose the introduction.
of the bill under the title Election Laws Amendment Bill 2021, sir, and simultaneously demanding that the legislative document should be referred to the concerned standing committee for further scrutiny, given the fact that it is an infringement upon the fundamental right of privacy that has been initiated by the Supreme Court. It will lead more disenfranchisement. That is why we are demanding that this bill should be referred to the standing committee. Sir, I would like to refer the verdict of Puttaswamy and Union of India, which limited the use of Aadhaar authentication solely to welfare program and to link with PAN numbers of the purposes of income tax. Previous instances where the Aadhaar was used to clean up databases as was done with Mahatma Gandhi, Rural Employment Guarantee Act, and the public assistance हमारे कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसको सुनिए, प्लीज अपनी सीट पर वापस जाइए। Deletion of people from database, sir, raising data security, sir, we do not have the data protection law right at this moment at our disposal, so you cannot bulldoze this kind of legislative document which is replete with legal infirmity. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस. Sir, this bill is outside the legislative competence of the House and violates the limits on legislation set by Supreme Court, sir, in Puttaswamy. The linking of IDs and Aadhaar violates the fundamental right of privacy as defined by Puttaswamy. Sir, this voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. Lastly, sir, this bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, universal adult franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division होगा, देख सर division करेंगे सर आप. No, division होना. No, Shri Sagat Rai ji. Sir, I beg to oppose the introduction of the bill to amend the RP Act 1950 and RP of the People's Act 1951. This bill is opposed to the Supreme Court judgment in the Puttaswamy case, where it is mentioned that Aadhaar is given to all citizens, all residents, whereas EPIC is given to all citizens. And besides, the central government is interfering with the election commission. The Prime Minister's secretary wrote a letter to the Chief Election Commissioner. Sir, I oppose. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं ये आधार ये अमेंडमेंट बिल को सर मैं इसका विरोध, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी सर मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है. क्योंकि आधार को पुट्टुस्वामी के प्रोपोर्शनैलिटी जजमेंट को अगर देखते हुए देखा जाए तो उसको लिंक करने में ये कहीं नहीं सर इससे दलित शोषित पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा, उन लोगों को अधिकारों का हनन होगा और आधार का इससे लिंकेज करके उनके वोट किधर जा रहे हैं
जो उनका एक गुप्त अधिकार होता है वोट देने का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of the Election Laws Amendment Bill 2021. Sir, no person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law. This is Article 21 of the Constitution. On the basis of Article 21 in Justice Puttaswamy versus Union of India, the Constitution bench of the Supreme Court has held that right to privacy is a fundamental right, comes under right to privacy is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. Sir, in this case, linking of voters, sir, linking the electoral vote will definitely infringes the right to privacy and violates Article 21. The Parliament is not empowered to take away the fundamental rights by means of a law. Therefore, I strongly oppose it and also give the representation of people. Thank you very much. I will not take up the time of the House by repeating the excellent arguments already made, but I will add one more argument, sir. We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. So this is an additional objection in addition to the four important objections already raised by other colleagues. माननीय मंत्री जी, Thank you, Mr. Chairman. प्लीज। अध्यक्ष महोदय जी, जो हमारे माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है, वो बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया, वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना इस तर्क जो दिया है वो सही है। सबसे पहले सर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्टरल रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। और साथ साथ सेक्शन 17 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में कहा गया है, नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगैलिटी ऑफ दिस एक्शन विच आर्टिकुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर, इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। साबित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभापति जी, Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House
member who has been permitted to raise the matter under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid down for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapse. अनुदानों की अनुपूरक मांगे माननीय मंत्री जी। I'll give the reply. May I reply to sir? Sir, I am thankful that you've given me the permission to speak on the subject, that is the supplementary demand for grants. That day, when the discussion commenced, many honorable members spoke on various aspects of the economy, not just confining to the supplementary demand for grants. I take this opportunity, sir, to answer many of the issues raised which pertain to the larger issue of the economy, not just the supplementary demand for grants. One particular thing which of course I will highlight is the supplementary demand for grants this time. Many members had said that this time the demand is very high. Is it because we underestimated in the BE and therefore we have come up with a higher demand? I just want to highlight repeatedly that the total is 3,73,761,000 crores, of which 2,99,243 is the additional cash outgo. It is also because the big ticket expenditure are going one for the Air India, for which of course amount which has been allocated has been mentioned in the supplementary demand. Also, at a time when we are very, very sensitive to the farmers and their requests, the government, because the international prices of fertilizers have gone up, we had to ensure that the farmers don't suffer because of it, and therefore an increase in the subsidy for fertilizer has been provided, which itself is accounting for 58,430 crores. So there are one or two very serious issues which members have raised during the debate because of the fact that they pertain to the supplementary demand for grants. I'd like to answer those questions. First of all, about the additional demand which is being raised. Even in 2011 and 12, more than 8.6% of the BE was raised through these supplementary demands. First, second and the third put together. In 2012-13, that was about 4.8%. 8.6% in 2011 and 12 was the additional supplementary demand, was the additional amounts raised through the supplementary demand for grants, whereas in 21-22, we are given the consideration that second wave and also extending the food subsidy, and also by the reduction in the fuel price which the central government has brought in, our revenues have come down to that extent, and also the fertilizer subsidy which I just mentioned, our additional demand put together is 9.3% in 21-22 BE, whilst in the excluding railways in the BE, therefore it's about 9.6. That is regarding the supplementary demand itself. So, but
It was very, very disappointing that Honorable Member Shashi Tharoor, when he spoke about Beti Bachao, Beti Padhao, came up with a very disheartening and discouraging slogan, Paisa Bachao, Beti Dubao. If only Honorable Member Shashi Tharoor looked into the fundamental data, he'll know that so much of good work has happened. I will list out a few. The latest National Family and Health Survey recorded that there are 1,020 women, for the first time in the record, that there are more women in today's India, 1,020 women per 1,000 men after 2 years of research that this data has come out. That's one thing. First thing, first time in record, we have more women in this country than men. Second, 44 crore bank accounts are opened under Jan Dhan Yojana. More than half of it, that is 24.48 crores, are women's accounts. Also, 80% of women in India have a bank account today because of Prime Minister's Jan Dhan Yojana. Sir, the important thing one has to understand in this is the spread between the rural and the urban areas. Account holders, Jan Dhan account holders are both in the rural areas and urban areas. Even better, 70% of all those who have Mudra accounts are women. So, because of the persistent women-led development, we are able to see that women are now included more in bank accounts. So 70% of all the beneficiaries in Mudra Yojana are women. Sir, I'll also draw the attention of Honorable Member Shashi Tharoor, who is not even here, that because of schemes like Beti Padhao, Beti Bachao, the gap between the girls and the boys in higher education institutions is narrowing. And as of today, 49% of all students in colleges are now girls, according to the latest All India survey on higher education. The survey for 2019-20 has also shown that during the last 5 years, that is between 2015-16 to 2019-20, there has been a 11.4% growth in student enrollment, whereas the female enrollment has been 18.2%, much higher than the overall average. So that has to be kept in mind and not get into sloganeering without facts being looked into. Sir, also you had members saying, what has happened? People like Nirav Modi have gone out of this country. What have you got from their assets? They are all defaulters. I like to say, sir, a total of 13,109.17 crore has been recovered from the asset sales of Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi as of July 2021. And that is the information from the Enforcement Directorate. The latest recovery was 792 crores from the sale of assets belonging to Vijay Mallya and others on July 16th, 2021. And also, sir, a total public sector banks together have effected a recovery of 5,49,327 crores over the last 7 financial years. So these people who are defaulters, who have fled the country, we have got their monies back and put it to the public sector banks, and therefore the banks are safer today and depositors' money is safer in them. I wish the opposition understands that this is the effort made by Prime Minister Modi's government, and it is no good for them to deny that. Sir, there were also questions about what is the finance position
of the states. I like to say total transfer to the states in the first 8 months of this financial year are already 86.4% of what was provided in the full year 1920 and 76.8% of what was provided in the full year 2020-2021. I also want to say, sir, that from the NDRF, funds are being provided and providing an extra 15,000 crores for emergency COVID-19 response. Sir, I like to put it on record that the financial position of the states is also reflected in the fact that the overall cash balance of states as on 30th November 2021 was 3,08,000 crores approximately. Fairly comfortable position, sir, and I'm happy that all of us are working together to keep the state's finances in a comfortable position. The states are having substantial cash balance with them, and only few exceptions. Out of 28 states, only 2 states are having negative cash balance. Sir, I want to put it on record that the questions asked by Honorable Member Dayanidhi Maran as regards Air India disinvestment. Sir, Dayanidhi Maran ji spoke about the sale of Air India for 18,000 crores. However, the value realization for this deal he is not talking about. Through this deal, 15,300 crore of Air India's debts will be paid for by the acquiring company and won't be a further burden on the taxpayers. The winning bid is also significantly higher than the 12,906 crore, which is the reserve price set by the government for the sale of the company. I also want to highlight that Dayanidhi Maran ji and his elder brother had sold SpiceJet for just ₹2 in 2015. According to the share price at that time of the SPA, the stake was worth 765 crore, which was sold for ₹2. And at least he should then realize what is it when we sold Air India on enterprise value, that he should know, and he should in fact appreciate the point, having himself at a personal level been involved with sale of a particular airline and at that rate. And therefore, sir, at the time SpiceJet reportedly had debt and liabilities outstanding of ₹3,500 crores with immediate payables of ₹2,200 crore, and the book value of the company was -24 per share. So, the situation of an airline company and in that company which doesn't make profit and then trying to sell it and selling it at a value of ₹2 per share, I am sure Honorable Member Dayanidhi Maran will appreciate and know how companies are being sold, because he himself sold his company at ₹2 and when it was in -24 per share valuation. So, the other issue on which repeatedly questions are being asked is the oil bonds. The total payment towards repaying the oil bonds, sir, and the interest between 2014 to 22 amounted for 85.68 crores. That is 13,500 crore as principal amount and the rest as interest. Sir, here I would like to say, the taxpayers of today, honorable members, through the chairman, I request, please pay attention to this fact. The taxpayers of today are paying for the subsidy dished out to consumers more than a decade ago by the UPA government, and they will continue to pay for the next 5 years as the redemption of the bond continues until 2026.
what I want to draw your attention, Honorable Speaker, sir, is even former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, in an address to the nation on June 4th, 2008, said, however, I quote, however, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing our burden to our children who will have to repay this debt, unquote. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही माना कि ऑयल बॉन्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता और सब्सिडी कस्टमर को वो नहीं दे रहे, ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर, ऑयल कंपनी के ऊपर दबा दिया वो सब बोझ, और फ्यूचर आने वाले जनरेशन के ऊपर वो बोझ पड़ेगा। ये विषय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा। और जब हम कहते हैं कि आज तक उनका भरपाई हम कर रहे हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि ऑयल प्राइस सब्सिडी इन्होंने उठाया नहीं, मगर पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने के लिए कोशिश किया, वो जो गलत था हम आज तक उसको भरपाई कर रहे हैं। And this speech, sir, of Dr. Manmohan Singh was after the bond issue was made. So I want that to be brought into the records. And finally, sir, there was also enough concern being expressed by members on inflation. I want to underline the fact that more than 5 full years, the UPA government ran their government with double-digit inflation, and they didn't do anything about it. And today, even when inflation is contained well within 6%, which is a permitted limit, they seem to be talking about price rise. Yes, we will know that for edible oil and things like that, we are taking measures through the EGOM, which is empowered GOM for taking care of essential goods. We will attend to the problem of oil price, edible oil price, and also some of the essential edible items. But sir, because the debate went beyond what was necessary in terms of the supplementary demands for grant, members have every right to raise issues, no doubt, but I wanted to put them on the record, my response. And with this, I request honorable members, the entire House, to pass the supplementary demands for grants. Thank you. Thank you very much, madam. I shall put the supplementary demands for grant, second batch for year 2021-22 to the vote of the House. The question is that the respective supplementary sum not exceeding the amount on revenue account and capital account shown in the third column of the order paper be granted to the President out of the consolidated fund of the Indian to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 2022 in respect of heads of demand entered in the second column thereof against the demand number 1, 3, 4, 6 to 8, 10 to 12, 15, 17 to 20, 22, 23, 25 to 31, 33 to 35, 40, 44 to 51, 53, 54, 59 to 65, 67 to 70, 73, 75 to 78, 81, 84 to 88, 90, 92 to 99 and 101. Those in favor of may say ayes, those against may say no. I think the ayes have it, and the ayes have it. The supplementary demand for grant second batch for year 2021-22 are passed. Item number 20, Mananiya Mantri ji. Sir, I introduced the bill. विधेयक का पुरस्स्थापन, प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करेंगे। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 21 माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 21-22 be taken into consideration. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूचित विधेयक का अंग बनी। खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 21A, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी। Sir, with your permission, I rise to move the following motion that the Biological Diversity Amendment Bill 2021 to be referred to a joint committee of the Houses consisting of the following 21 members from this House: Dr. Sanjay Jaiswal, Srimati Diya Kumari, Dr. Hina Gavit, Srimati Aparajita Sarangi, Shri Raju Vishta, Shri Pralab Lochan Das, Shri Santosh Pandey, Shri Pratap Simha, Shri Jugal Kishore Sharma, Shri Brijendra Singh, Shri Ajay Tamta, Shri Jagdambika Pal, Shri Gaurav Gogoi, Shri S. Jyoti Mani, Shri A. Raja, Dr. Kokali Ghosh Dastidar, Shri Kotagiri Sridhar, Shri Pratap Jadhav, Shri Sunil Kumar Pintu, Shri Achyut Samanta, Shri Ritesh Pandey, and the 10 members from the Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of next session, that in other respects the rules of procedure of this House relating to parliamentary committee shall apply with such variation and modification as the Speaker may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House names of the member to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. I have obtained the consent of the members to serve in the committee. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही 2 बजकर आइटम नंबर 21B, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी।
Sir, I beg to move that the Election Laws Amendment Bill 2021 be taken up for the consideration. मंत्री जी, आप बिल के बारे में कुछ बोलोगे? सर, ये इस सदन में आज ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आए हैं। इसमें कुछ प्रावधान हम ऐसे लेके आए हैं जो भारत का जो चुनावी प्रोसेस है, इलेक्शन करने का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो हम चुनाव करते हैं, उसमें कई अच्छे चीज सामने आने वाले हैं। खास करके सर, मैं 3 पॉइंट को आपको बताना चाहता हूं। इस कानून का अभी तक का जो इलेक्शन लॉ है, उसके तहत अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है, उसके तहत एक जो नाम मत लाइए सर, अभी तक का जो कानून प्रावधान है, उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ कमियां है। इसको दूर करने के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल करके इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशन आए हैं, उसको मिलाते हुए हमने कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सर, इस कानून में हम लोग सब जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन अभी जो प्रावधान है 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आपको वंचित होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम में जनवरी 1 तारीख को जो क्वालिफाइंग डेट है, पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दिया है। उस क्वालिफाइंग डेट में अगर जो आते हैं, उसके बाद पूरे साल भर जो रह जाते हैं, उसको वंचित होता है। इसलिए एक क्वालिफाइंग डेट को सर 18 साल होने के बाद 1 जनवरी, 1 तारीख अप्रैल, 1 तारीख जुलाई और 1 तारीख अक्टूबर कैलेंडर ईयर में 4 क्वालिफाइंग डेट दिया गया है। उसके अलावा सर, अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब जो एक इंसान कहीं सर्विस में काम करते हैं, कहीं अपने जो ओरिजिनल वोटिंग जो जहां पे उसका नाम है, उससे अलग जगह जाते हैं, तो उसको सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड का कोई प्रावधान नहीं, वहां लिखा हुआ है वाइफ। तो सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 20 का सब सेक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है, उसका जगह में स्पाउस लिखने का इसमें प्रावधान किया गया है। डिटेल सर जब चर्चा होंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर। इसके बाद सर, प्रेमिसेस जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए, उस प्रेमिसेस को एक्वायर करने का प्रावधान जो है, उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है। उसका भी मैं विस्तार से बाद में माननीय सदस्यों को मैं बताऊंगा। आखिरी में हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है, सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए हैं, उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और बाद में माननीय सदस्य इस पे जब कहेंगे तो मैं पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि ये चुनाव सुधार देश के लिए कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर आज सुबह सर हम लोग एक दरखास्त किया था सर, सरकार को एक दरखास्त किया था कि ये बिल आज इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, आज ये बिल पारित हो रहे हैं, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर ये बिल महत्वपूर्ण है
इतना जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है। और ये भी हम मांग किया था श्री निशिकांत दुबे जी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में प्लीज स्टैंडिंग कमेटी में टी.आर. बालू जी Sir, enough. The government has not generated enough public opinion. The public opinion should be generated fully, and we should be discussed in house after some time, after getting the nod from. मैं एक इम्पोर्टेंट मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात को क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा स्टैंडिंग कमेटी से ही रिकमेंडेशन होकर आया है। सर, मैं सदन को जानकारी के लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को पढ़ना चाहता हूं। द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस इन 105th report has stated that committee is of the view that linking of Aadhaar number with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the committee has directed that the relevant laws in this regard should be amended at the earliest, and action taken report is required to be forwarded to the committee. ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो ऑल पार्टी का है, वहीं से ये रिकमेंडेशन होके आए हैं। सर, श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो कांग्रेस है सभापति महोदय, ये केवल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करती है। इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को इसने गिरवी रख दिया। आपको यदि ध्यान हो सभापति महोदय, तो एमएस गिल जो कि इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कांग्रेस के सांसद बने और कांग्रेस ने उसको अपना जो है मंत्री बनाया, और इसी कारण से वो इलेक्शन कमीशन को बंधक और गिरवी रखना चाहती है। और हमारी सरकार जो एक बिल लेकर आई है, एक जो सीरियस रिफॉर्म्स लेकर आई है, उसको ये बर्बाद करना चाहती है। मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, आधार कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है कि आधार लेकर हम आए। आधार का पैसा इन्होंने बिना किसी कानूनी जामा के पहना दिया। आज यदि आधार को हम इलेक्टोरल रोल्स के साथ जोड़ रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है। इस सदन में ऐसा हुआ सभापति महोदय कि जो नेपाल के नागरिक थे, एम.के. सुब्बा यहाँ के सांसद हो गए। इस आधार के बाद जो है कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है, न किसी को बना सकती है। और इसीलिए ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इस कारण से सारी पॉलिटिकल पार्टी, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो पोलिंग बूथ है सभापति महोदय, कई एक जगह मैं उसको भोगता हूं कि वो मैक्सिमम मदरसे में हो जाता है, मैक्सिमम मस्जिद में हो जाता है, और उसका कोई नियम कानून जो है इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं था। और इसीलिए ये संशोधन लेकर सरकार आई है। हम इसके बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि बांग्लादेशी को, विदेशी को यहाँ का जो है वोटर नहीं बनाने दिया जाए, और जो इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था है, कभी गिल जैसा उदाहरण नहीं हो कि वो कांग्रेस का मंत्री हो जाए, कभी मुख्यमंत्री हो जाए। इसीलिए पूरा सदन इसका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री कल्याण बनर्जी, श्री कल्याण बनर्जी भैया, सर, ये आपको शोभा नहीं देता है सर। कल्याण जी, दिस इज द बिल, दिस इज द बिल, you are really, this is the bill, thereby entire democracy is being taken away in this way. This bill needs a discussion. I tell you sir, this law minister last week invited me, all the members of the law justice standing committee. That time he committed that it would be sent to the standing committee. Now he is the master of the plan. He is just killing. He is killing. He is a great. श्री विनय राउत जी, the entire thing. सभापति महोदय, हम शिवसेना के तरफ से इस बिल को हम विरोध कर रहे हैं कि जिस जल्दबाजी से इस बिल को यहाँ पेश करने की कोशिश की जा रही है, और परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी के कृपा से हम सारे लोगों को मतदान का पवित्र अधिकार प्राप्त हो चुका है। ऐसे मतदार सूची को आधार से लिंक करना और ये जल्दबाजी से उसे पास करना, ये सही नहीं है। इसके ऊपर सही तरीके से बहस होनी चाहिए।
सारे लोगों का उसके ऊपर विचार व्यक्त होने की आवश्यकता है और इसलिए इस सब मैं विनती कर रहा हूं कि ये बिल। थैंक यू। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सुप्रिया सुले। Sir, I have only 2-3 important questions to ask the government. The bill was introduced today. What is the tearing hurry? And in the speech, Mr. Nishikant Dubey talked about Bangladeshis. In the newspapers that only the Congress wants Bangladeshis. I want to humble question to the BJP that there is an allegation against the BJP that one of their ministers is a Bangladeshi, is an allegation in West Bengal. That must be verified when he talks about the other people. The other thing they said, talked about electoral reforms. If the Honorable Minister wants electoral reforms, he should take this bill back, bring a comprehensive bill of entire all electoral reforms, talk about the women's reservation bill, electronic bonds, महिला रिजर्वेशन का बिल भी इसके साथ लाए, हम साथ में समर्थन करेंगे और इस बिल पास करेंगे. So they should take this bill back. धन्यवाद. श्री लालू श्री कृष्णा. Sir. Lavu sir. Thank you, sir. Thanks for giving me opportunity, sir. Sir, this bill needs to be discussed, sir. Yes, we very much welcome the gender neutrality that they've taken up in this. At the same time, giving opportunity for 4 times to enroll themselves. But still, sir, we have an experience. 30 crore people have been already seeded, sir. And what happened in Telangana, Andhra in 2015-16 was in the Telangana election, 30 lakh people couldn't vote. 30 lakh people couldn't vote. And in Andhra, what happened was because of this seeding of Aadhaar and this data together, they could go ahead, the previous government could go ahead and make sure that whom to be given what and whom to be taken out what. So I request the minister to again, please come with a comprehensive bill so that a proper discussion happens in the House. Sir. Shri Ritesh Pandey ji. Ritesh Pandey ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. जैसा कि हम सभी लोग ये मानते हैं कि इस बिल के ऊपर कायदे से चर्चा होनी चाहिए और सभी को एक मौका मिलना चाहिए था इसमें बोलने के लिए. जिस हिसाब से इसको सदन में बुलडोज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है. इस बिल में कुछ मुद्दे हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा. मान्यवर, इस बिल के जरिए जो हमारे देश में आधार को लेकर के वोटों को लिंक करने की बात की जा रही है. श्री अनुभव मोहंती जी. श्री अनुभव मोहंती जी. Sir. Thank you, sir. Sir, on behalf of my party, Biju Janata Dal, sir, I appreciate the way the Honorable Minister said that there will be 4 phases, 4 chances for qualification, and sir, it will be gender neutral. But at the same time, sir, this is not the proper decorum. This is not the proper way to pass any bill. It was supposed to be introduced today, and the way the House is running, it is in a very disturbed way. This is not the proper time. It should be debated. It should be discussed by all the parties, and then only considered to be passed, sir. ओवैसी जी. श्री ओवैसी जी. Sir, I stand to oppose this bill. This bill violates the basic structure of the Constitution. In the Keshananda Bharati case, it was clearly said that democracy is part of basic structure. This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued to a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever to indulge in this. Secondly, sir, by bringing this bill and making a law, you are interfering in the work of election. Shri N.K. Premchandran ji. N.K. Premchandran ji. I stand to oppose this bill. Today morning at the time of introduction also I have opposed it on the constitutional grounds. Now my opposition is regarding the way by which the bill is being passed. Because the bill is introduced only today. Even the members are not getting an opportunity to move the amendments. This is our democratic right. It is a democratic right of a member to propose the amendments. It is quite unfortunate in the parliamentary system of democracy. The members of the House are not being allowed. Mohammad Bashir ji. Sir,
Sir, please, sir, what is it? The members are not been allowed to move the amendments means, then what is the parliamentary democracy? What is the use of debate? मोहम्मद बशीर जी, Sir, I very effectively oppose, sir. This is a shame for the entire legislature. The parliament is both its head because of this negative standpoint. It is not heard in the history of the legislature. थैंक यू माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल, अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं, उसको आपने मौका दिया हमको यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अब इसको कंसिडरेशन करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को हम चाहते थे सारा मेंबर्स चर्चा में हिस्सा ले, अपना मत दे, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत सारा विपक्ष के नेता अगर इस बिल पे अपना योगदान करते, अपना व्यूज देते, चर्चा करते, तो बहुत अच्छा संदेश जाते। एक तरफ तो वो हाउस में हंगामा कर रहे हैं और चर्चा ठीक से होने नहीं देते, फिर सरकार को कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रहे। हम तो चर्चा चाहते हैं, इसीलिए तो बिल यहाँ लेके आए हैं। और जब हम चर्चा चाहते हैं और बहुत ही शांति वातावरण में चर्चा होना चाहिए, और इस वक्त ये हंगामा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिल है, चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में, और जरूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। और कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है, इसके बीच में कई चर्चा हुई हैं, और बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज ये बिल यहाँ लेके आए हैं। सर, जब मैं कंसिडरेशन का लीव ले रहे थे, उस समय मैंने इस बात को जिक्र किया था। हमारे कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। सर, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुके हैं, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सारा पार्टी के सदस्य होते हैं, और वहाँ दलगत से ऊपर उठ करके चर्चा होते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंडेशन किया है। मैं फिर से देश के लिए सदन के माध्यम से मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सर, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है, उनका रिपोर्ट क्या कहते हैं? द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट लिंकिंग ऑफ आधार नंबर with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the committee has directed that relevant laws in this regard should be amended at the earliest, and action taken report is required to be forwarded to the committee. हम सर अपने यहाँ मर्जी डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं लाया, व्यापक चर्चा करके ही ये विषय को आज सदन में लाया गया है। सबसे पहले सर, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 1988 में, उस समय वोटिंग राइट का एज उस समय 21 था, और उसके बाद 18 साल किया गया है। जब प्रावधान 18 साल किया गया है, लेकिन उसमें एक गैप, एक लेकुना रह गया था, जिसके वजह से 1 तारीख जनवरी को अगर कोई वहाँ पे पार हो जाता है, अपना नाम उन्होंने दर्ज नहीं कराया इलेक्टोरल रोल में, तो पूरा साल भर उसका दरवाजा बंद हो जाते हैं। इसका मतलब सर, हम जो 4 क्वालिफाइंग डेट्स दे रहे हैं, साल भर में जो भी 18 साल बनते हैं, तुरंत वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दाखिल कर सकते हैं, और वोटिंग राइट का अपना जो संविधान में राइट दिया है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सर, जेंडर न्यूट्रल पे आज से पहले कि कोई सर्विसेज में दूसरे जगह में पोस्टिंग है, वोट डालने चाहते हैं, उसके वाइफ डाल सकते हैं। अगर वो मेल है, पुरुष है, तो उसका वाइफ तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ वहाँ पोस्टेड है, उसका हस्बैंड को प्रावधान नहीं था, तो इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। और सर, इसको सेक्शन 1950 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में द वाइफ की जगह में द स्पाउस कर दिया गया है, और जहां इफ शी लिखा है
वहाँ इफ सच स्पाउस करके वो अमेंडमेंट लाया गया है। और सर उसके बाद में चुनाव करते समय जगह का जरूरत होता है और जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं उनको एक तरीके से स्कूल या कम्युनिटी बिल्डिंग या कोई भी जो वहाँ पे अवेलेबल बिल्डिंग है उसको रिक्विजिशन करना पड़ता है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर पुराने प्रावधान में जो दिया है उसको चेंज करके अभी जो नया लाया है वो मैं सर सेक्शन 160 1958 का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को मैं पढ़ना चाहता हूं सर। क्लोज सर सब सेक्शन 160 1958 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए में लिखा है ए premises any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling station for counting, for storage of ballot boxes, voting machines, including voter variable paper audit trail and poll-related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel। यानी कि सर ये जो है एक चुनाव के लिए जो जरूरत है उसी के लिए वो भी सर provided that such premises shall be requisitioned after the issuance of notification of the election commission under section 30 for such election till the date notified under clause E। यानी कि सर जब तक इलेक्शन नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक मर्जी से इलेक्शन का ऑफिसर जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं सर। अंत में सर जो सबसे ज्यादा इन लोग जो पुट्टुस्वामी जजमेंट को कोट करके आधार के साथ इलेक्टोरल रोल का लिंकिंग को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे, मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल का प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा या पढ़ के भी समझ के भी जानबूझ के नहीं समझने का कोशिश कर रहे, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से जो विरोध का स्वर उठा है ये ठीक नहीं है सर। पुट्टुस्वामी का जजमेंट में पुट्टुस्वामी जजमेंट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर? उस समय ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और साथ साथ उन्होंने कहा है कि permissible limits for invasion of privacy, namely there should be existence of law, legitimate state interest, and such law should pass the test of proportionality। इस तीनों को मैं सर शॉर्ट में जस्टिफाई करके बताना चाहता हूं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग लॉ होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए हम ये आज ये लॉ लेके आ रहे हैं टू जस्टिफाई दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। दूसरा सर लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसलिए है कि सेक्शन 17 ऑफ द आरपीआई एक्ट में ये कहा है नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सर ये मल्टीपल नाम को हटाने के लिए ये लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ में सर जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं मानता हूं कि हम लोग जो प्रावधान ला रहा है ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे। मैं पूरा सदन को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सब समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधायक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधायक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। खंड 1 विधेयक का अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य उसके विपक्ष में है, विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें
कि विधेयक को पारित किया जाए। I request the bill may be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।